नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में आज बहुत सारी खबरों की पड़ताल हमें करनी है। लेकिन उससे पहले स्वामी रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू हो रही है। पहले आपको वहां ले चलते हैं। ओम अग्रिशी स्वामी रामदेव जी, ओम Ashari ji, Om to all of you. Ladies and gentlemen, esteemed guests, Swamiji and his devoted followers from across the globe, it is a privilege and a joy to stand before you today as a representative of Madame Tussauds New York to celebrate an extraordinary moment of cultural and spiritual recognition. We are here to unveil a masterpiece that not only symbolizes excellence in art, but also honors a figure whose life and teachings have transcended borders and touched the lives of millions. Today, we pay tribute to someone who has been a beacon of inspiration and guidance in the realms of yoga and Ayurveda, Swami Ramdev. A guru who has brought the ancient practices of yoga into the living rooms and hearts of people worldwide, making the profound wisdom of India accessible to all. Swami Ramdev's journey is a testament to the power of dedication, discipline, and an unyielding commitment to the betterment of humanity. His teachings have not only enlightened individuals, but have sparked a global movement towards holistic wellness and spiritual awareness. It is this very essence that Madame Tussauds, an institution globally renowned for immortalizing legends, has captured in wax. The figure we are about to unveil is unique and very special for us at Madame Tussauds, because after debuting here in New Delhi, it will then travel to New York to be on display. Madame Tussauds New York, right in the heart of Times Square, is the greatest attraction in New York City. And this wax figure will join over 200 other global icons, making us even greater. I extend my heartfelt gratitude to Swami Ramdev, his team, and the people of India for this magnificent achievement, and I look forward to seeing this extraordinary reveal with you. If New York is the heart of the world, India is the spirit. Right now, and through Swami Ramdev's figure in New York, India will look out to the world. Thank you all. Thank you. Thank you so much, Mr. Tiago and Madame Tussauds New York, for bringing this great moment of pride to all the Indians. We are truly grateful for this honor and recognition of Indian culture at such a global platform. With this, ladies and gentlemen, right before we proceed towards the moment of the day and unveil this wax figure, we would now like to take this opportunity to showcase the remarkable journey of Yog Rishi Swami Ramdev Ji, from his village to Madame Tussauds New York. Let's have a look. हरियाणा के अलीपुर गांव के अनपढ़ माँ बाप के सामान्य किसान परिवार में जन्मा बालक रामकृष्ण, जिसने चरैवेति के सिद्धांत पर चलकर शून्य से शिखर तक की यात्रा तय की। बालक रामकृष्ण 9 वर्ष की आयु में घर परिवार को त्याग कर महर्षि दयानंद का अनुसरण करने का संकल्प लेकर गुरुकुलीय शिक्षा के माध्यम से वेद, उपनिषद, व्याकरण, दर्शन आदि शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर बना आचार्य रामकृष्ण। समाज, राष्ट्र ही नहीं, पूरे विश्व की सेवा का संकल्प और वसुदैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने हेतु आचार्य रामकृष्ण ने वर्ष 1995 में संन्यास ग्रहण कर स्वामी रामदेव के रूप में पतंजलि योग पीठ की स्थापना की और यहां से आरंभ हुई भारत को विश्व गुरु बनाने की स्वामी रामदेव जी की संघर्ष यात्रा। स्वामी रामदेव जी के विगत 5 दशकों के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ व विकल्प रहित संकल्प का परिणाम है भारतीय पुरातन योग विद्या का पुनर्जीवन। गूढ़ ग्रंथों
और गुफाओं से बाहर निकालकर योग को जन जन के द्वार तक पहुंचाया तथा देश विदेश के लगभग 200 करोड़ लोगों को योग से जोड़कर सनातन योग परंपरा को विश्व पटल पर गौरव दिलाया। भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर गौरव दिलाने के लिए लाखों किलोमीटर की यात्रा करके नव जागरण का अभूतपूर्व शंखनाद किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज योग विश्व का सबसे ज्यादा बोला और ढूंढा जाने वाला शब्द बना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वैश्विक स्वीकार्यता का श्रेय भी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को जाता है। स्वामी रामदेव जी ने जहां योग को वैश्विक पहचान दिलाई, वहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मान्यता दिलाई। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लाखों लोगों को एक साथ योग कराने का कीर्तिमान भी स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों को जाता है। भारतीय चिकित्सा व शिक्षा के प्रसार और उसके वैश्विक प्रतिष्ठापना हेतु स्वामी रामदेव जी द्वारा अनेक प्रकल्पों के माध्यम से ऋषि मुनियों के चिकित्सकीय ज्ञान एवं प्राच्य विद्या के संवर्धन का कार्य अबाध गति से प्रवाहमान है। नितांत अभावों, संघर्षों और चुनौतियों के बीच योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी की 3 बड़ी वैश्विक क्रांतियों को करने के बाद भारतीय चिकित्सा एवं सनातन धर्म के शाश्वत सत्यों पर वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया तथा 45,000 करोड़ रुपए का स्वदेशी साम्राज्य देश की सेवा के लिए स्थापित करके अर्थ से परमार्थ का एक श्रेष्ठ कीर्तिमान स्थापित किया। योग ऋषि के नेतृत्व में ऐसे युवाओं का निर्माण हो रहा है जिनका दृष्टिकोण भारतीय हो, परंतु सामर्थ्य वैश्विक नागरिक के रूप में समूचे विश्व का मार्गदर्शन करने का हो। Swami ji, your journey is truly inspiring, and it has touched the lives not just of millions, but billions of people across the world. With this, ladies and gentlemen, be ready with your cameras, because the moment for which all of us have been waiting for is finally here. जिस क्षण का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो पल अब आ चुका है. We are now going to unveil the wax figure of Yog Rishi Swami Ramdev Ji. So I would humbly request His Holiness Yog Rishi Swami Ramdev Ji, along with all the other dignitaries on the dais, to please come forward to do the honors. Sir, I would request you to please come on this side of the stage. और इसी के साथ, ladies and gentlemen, I hope you all are ready for this highly anticipated moment. क्या हम तैयार हैं? Are we all excited? So let's do the countdown with me. 5, 4, 3, 2, 1, and here we go. Ladies and gentlemen, we present to you the wax figure of the most revered yoga guru and saint, Yog Rishi Swami Ramdev Ji. What a proud moment for all of us. The history has been made today. Wow. क्या बात है? Oh my God. Ladies and gentlemen, this is so difficult to figure out that which one is real Swamiji. But one thing I can say for sure, that one is a man-made figure, the other one is a God-made figure.
such a remarkable work by Madam Tussauds' team. Ladies and gentlemen, please put your hands together one more time as we are witnessing this momentous occasion. It is such a lifelike figure of Swami Ramdev Ji, and as I said, it's so difficult to figure out that which one is real. The resemblance is really uncanny. With this, I would like to thank all the dignitaries, and I would request them to kindly take a seat in the front row. आवाज कर दो भाई थोड़ी। जब मैंने फिगर देखा तो सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये लगा कि बाल कैसे लगाए। तो मुझे जो मिस्टर टियागो जी हैं, जो न्यूयॉर्क से आए हैं, वर्ल्ड के और खास करके उसमें अमेरिका की ज्यादा भागीदारी है। 200 से बड़े आइकॉन्स के फिगर न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद जो अट्रैक्शन है उस पर लगाए गए। सभी जो फिगर्स हैं वो कपड़े पहन करके रखते हैं, तो उनका पेट और पेट के मसल्स और ये जो हेयर्स हैं, ये वैसे तो नेचुरल हेयर हैं, लेकिन ये रामदेव वाले नहीं हैं। लेकिन उन्होंने मेरे इस फिगर से मैच करते हुए सारे हेयर्स को, एक एक बाल को, अब इसमें कितने हजार हैं या कितने लाख बाल हैं मुझे नहीं पता, एक एक बाल को हाथ से लगाया। और ये मैंने सुबह पूजा के बाद तिलक लगाया था, तो बोले बाबा जी आप ही लगा दो। अब इस पूरे पुरुषार्थ में 2018 में मैं मैडम तुसाद का जो लंदन का अट्रैक्शन है वहां पर गया था। वर्ल्ड में 24 ऐसे अट्रैक्शन हैं और न्यूयॉर्क का उसमें सबसे बड़ा है। उसमें जैसे बताया नम्रता ने कि वहां अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी बहू ऐश्वर्या राय है, उनके फिगर्स हैं मतलब, और ऋतिक रोशन है, प्रियंका चोपड़ा है, शाहरुख खान है। ये तो 5 तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं। लेकिन उन सब के साथ वर्ल्ड के 200 रिनाउंड आइकॉन्स के साथ भारत के एक सन्यासी को इन्होंने सम्मिलित किया। और आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत के योग पर है, आयुर्वेद पर है। अब तो अमेरिका में भी मेड इन यूएस एंड मेड बाय अमेरिकन्स, अब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। माने योग आयुर्वेद स्वदेशी का जो मूवमेंट पतंजलि से चला, उसकी लहर अब पूरी दुनिया में। नैतिक एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित ऐसी शिक्षा जिसमें भाषा का बोध हो, विषयों का बोध हो, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, इसके साथ करिकुलम में कैरेक्टर बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड, रूट बेस्ड एजुकेशन पूरी दुनिया को मिले, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य पतंजलि से चल रहा है। और मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं, आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा लक्ष्य होगा 5 से 10 लाख स्कूलों में गुरुकुलीय शिक्षा को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि पूरी दुनिया में व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और युग निर्माण की एक नई दिशा हमारे यूथ में, हमारे स्टूडेंट्स में, ऐसी एक उनका ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से, रिलीजियस टेररिज्म से, पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट टेररिज्म से पूरी दुनिया को बचा करके सही दिशा में दुनिया को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिले। उस दिशा में बच्चे आगे, ये समाज, राष्ट्र और विश्व आगे बढ़ सके, ऐसे वर्ल्ड सिटीजन हम देने वाले हैं। पूरी दुनिया में अब जो हेल्थ सीकर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको उनके बीपी से, उनके शुगर से, उनके थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से मुक्ति मिले। ये सिंथेटिक मेडिसिन से पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पूरी दुनिया
की निगाहें भारत की ओर हैं और मैडम टुसाड के अंदर ये जो प्रयत्न है, मैंने पूछा भाई तुम एक मोम की प्रतिमूर्ति, उसको जीवंत स्वरूप उसमें प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ये वैक्स फिगर बोलते हैं, उसको प्रतिमा या उसको दूसरे शब्दों से वो नहीं नवाजते कि हम हूबहू उसकी प्रतिमूर्ति उसमें जीवंतता प्रदान करते हैं। तो लगभग 2 करोड़ की लागत इनको लग जाती है और मेरे जैसा फिगर बनाने में तो शायद कुछ थोड़ा बहुत और ज्यादा ही लगा होगा। तो बात कॉस्ट की नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की है। तो वर्ल्ड में ऐसे 24 ऐसे अट्रैक्शन मैडम टुसाड की ओर से बनाए गए हैं और उसमें भारत और भारतीयता को, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क सिटी में है और उसमें भारत के एक सन्यासी को इन्होंने स्थान दिया है। हम उसके लिए कृतज्ञता पूर्वक इनका आभार व्यक्त करते हैं। ये स्वामी रामदेव का सम्मान नहीं, ये योग का, आयुर्वेद का, ये भारत की सनातन संस्कृति का जो हमने अपने पूर्वजों से सांस्कृतिक विरासत पाई है, ये उसका सम्मान है। और सबसे ज्यादा लोग वहां पर आते हैं और वर्ल्ड में आइकॉन केवल हॉलीवुड या बॉलीवुड से ही नहीं होते, वर्ल्ड में आइकॉन केवल पॉलिटिक्स से ही नहीं होते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं होते, केवल साइंटिस्ट ही नहीं होते, सन्यासी भी वर्ल्ड में आइकॉन हो सकते हैं। इसको इन्होंने जो इज्जत दी है, उसको गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा दी है, यह भी इनके एक विजनरी जो एटीट्यूड है उसको दर्शाता है। तो आज मुझसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, मैंने कहा लग तो मेरे जैसा ही रहा है। तो लेकिन जैसे नम्रता कह रही थी, एक मैन मेड ये पुरुषार्थ है और एक गॉड मेड स्वामी रामदेव आपके सामने है। तो जब मैं मैडम टुसाड अट्रैक्शन लंदन में गया तो करीब 200 तरह से मेरा मेजरमेंट लिया गया, अब तो मैं भूल भी गया उसको, और खड़ाऊ के साथ ही था। अभी भी हम खड़ाऊ पर ही खड़े हैं, एक खड़ाऊ बगल में है तो एक खड़ाऊ खाली भी रखे, इन्होंने हरिद्वार से मंगवा ली थी। तो आज ये, क्योंकि ये तो प्रतिमा है ना, ये एक ही एक्शन कर सकती है, मैं तो कई कर सकता हूं। कुछ पूछ रहे थे फिगर की मैचिंग इतनी अच्छी कैसे है, मैंने अपने फिगर को बिगड़ने नहीं दिया ना। 2018 का ही है जो उन्होंने माप तोल लिया था, माने थोड़ी से लेकर के चोटी तक, हाथ से लेकर के इसके मैंने देखा नाखून भी जैसे मेरे हैं वैसे ही मैच किया। कुछ थोड़ी बहुत 5 सालों में चेंज आ जाए तो इनके सिंगापुर से ये कलर मैचिंग वाले स्पेशल आर्टिस्ट आए हुए, 200 आर्टिस्ट लगे हैं इसके बनाने में। 200 तरह के मापदंड अलग अलग तरह से उसको माप करके, सामने से लेकर के, पीछे से लेकर के, माने ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। और अब मैं तो इतना ही कहूंगा, हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ते चले, लोगों को एक प्रेरणा मिले। मेरा सपना है मैं अपने जैसे विचार, सोच और रचना धर्मिता को जीने वाले ऐसे योग पथ पर और कर्तव्य पथ पर बढ़ने वाले कुछ लोग हिंदुस्तान में, और खाली हिंदुस्तान में क्यों, पूरे जहान में, पूरे विश्व में, हमने तो वसुधैव कुटुंबकम माना, तो पूरे विश्व में ऐसे रचना धर्मिता वाले लोग तैयार हों जो योग के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते चलें, कर्मयोग के पथ पर आगे बढ़ते चलें। जैसे हमने पिछले दिनों हिंदुस्तान में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी,
अब ये राष्ट्र मंदिर की प्रतिष्ठा हो, जन जन में मानवता की प्रतिष्ठा हो। यही तो राम राज्य का हमारा सपना है। राम राज्य कोई ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी नहीं है, ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। राम जैसे आदर्शों पर, राम जैसी मर्यादाओं पर, उनके पदचिन्हों पर, उनके चरित्र के अनुरूप अपने चरित्र को बढ़ाते हुए हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ें, एक सपना है। और यदि भारत के संदर्भ में कहूं तो 140 करोड़ में से कुछ बच्चों, कुछ बीमारों, कुछ बुजुर्गों को छोड़ दिया जाए तो 100 करोड़ लोगों के 200 करोड़ वर्किंग हैंड्स हैं। और ये सारे जब राष्ट्र के सृजन में लगे और वो बीमारियों से, बुराइयों से, तमाम तरह की ध्रुवताओं से, तमाम तरह के प्रमादों से, ईगो इग्नोरेंस से मुक्त होकर के जब सृजन में लगे तो भारत आने वाले मात्र 10-20 सालों में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी ही नहीं, आर्थिक महाशक्ति के साथ एक सामाजिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक महाशक्ति हो सकता है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़े। आज बहुत पुरुषार्थ किया है। एक बार हम मैडम टुसाड की ओर से जितनी भी यहाँ पर टीम आई हुई है, हमारे मिस्टर तियागो जी से लेकर के एक यहाँ बहन भी है। अब वो बहन है कि बेन है कि बहन है कि भाई ये पता नहीं लगता है। मिस्टर बहन सुंदर है ये, लेकिन बहुत बहुत मेहनती बालक है। तो हम अपने भाई तियागो जी के साथ, बहन जी के साथ, हमारे इंडिया के जो हेड हैं भाई अंशुल जैन जी, उन सहित ये पहली बार माता सुनीता, इंडिया वाले खोजते रहते हैं स्वामी रामदेव को स्कॉटलैंड में लगभग 1000 एकड़ का टापू आइलैंड किसने दिया, वो ये माता यहीं पर बैठी है। कोई छिपावा एजेंडा नहीं है। हमने पतंजलि शुरू किया आज से लगभग 20 साल पहले। 75 करोड़ रुपए इन्होंने सीड के रूप में दिया।